Welcome my ninjas to Vedantu Number Ninjas. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are my ninjas today? What's up guys? कैसी चल रही है जिंदगी? पढ़ाई हो रही है कि नहीं अच्छे से? और मस्ती भी जरूरी है. मस्ती हो रही है कि नहीं आप लोगों की? I hope you guys had a lot of fun and you got a lot of learnings while learning the integers chapter from your Sana ma'am at the Vedantu Number Ninjas. So all my new subscribers and all my new family members, welcome to the family of ninjas. Most welcome bachcha log. I hope you all are doing great in these days. Then today what are we going to do bachcha log? Today we are going to revise the entire chapter of integers at just one go. In this one video you will get all the concepts of integers, all the formulas, everything at one place itself. कई बार होता है ना कि एग्जाम से पहले हम सोचते हैं कि यार अगर एक जगह पे मुझे सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स मिल जाते तो मैं एग्जाम से पहले फटाफट बस उसी को देख लेता, फिर मुझे पूरी कॉपी नहीं पढ़नी पड़ेगी, सारे सम्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना? लगता है ना ऐसा? सो दिस इज व्हाई आई हैव ब्रॉट टू यू दिस integers chapter in just one shot. So let's start today's session where we are going to learn all the concepts, not learn but revise all the concepts. All the new people who have not seen the earlier videos, you can go to the channel of Vedantu Number Ninjas, subscribe to the channel so that you never ever miss any of the topics. We have already done the entire NCERT of integers, R.D. Sharma, R.S. Agrawal questions and every type of tough questions also. So if you guys have missed that, quickly go back and watch them again. And all those who have already seen those videos, let's revise those concepts, solve some questions and let's क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल सीमेंट की तरह जमा देते हैं इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में. चलो लेट्स स्टार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू see the entire integers chapter just at one glance. So let's begin. First of all, integers. What are integers? है ना? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? What are integers? Integers are nothing but real numbers without any fractional component. जैसे कि 0, -1, 1, 2, 10, 100, -1000, anything. प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, राइट? बीच में कौन आता है? जीरो. रिमेंबर, याद है सब लोगों को कि व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर नथिंग बट द रियल नंबर्स व्हिच डोंट हैव एनी फ्रैक्शनल कंपोनेंट. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटीजर्स? 0, 2, 5, -15, -1000, 752, एनीथिंग लाइक दिस. बट what are not the examples of integers? Which number are not included in integers? Decimal numbers, fractional numbers and so on. ठीक है, जो भी नंबर जिसको हम फ्रैक्शनल कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एक फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है, वो इंटीजर्स में नहीं आते. ठीक है, चलो. सो दिस वाज व्हाट आर इंटीजर्स. नेक्स्ट, what are the types of integer? Now quickly comment and tell me what are the different types of integers. जल्दी बताओ. What do you think are the types of integers? How many types of integers are there? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. Okay, now I hope everybody has answered positive integers and negative integers, right? Absolutely wrong. There are 3 types of integers. What are they? Positive integers, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स. 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, याद है कि नहीं है? जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, राइट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स. वन इज पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर जीरो. ठीक है, चलो नेक्स्ट. नाउ डू यू गाइज रिमेंबर द ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स व्हिच वी हैव लर्नड? What are those operations? Number 1, सबसे पहले, पता नहीं क्यों हम सबसे पहले एडिशन, मैं तो हमेशा एडिशन से ही स्टार्ट करती हूँ, आप लोग का पता नहीं. सो व्हाट आर दोज ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, राइट? सो दीज आर द 4 ऑपरेशंस which can be done between any 2 integers. There are other operations also, but अभी हमें इन्हीं को सीखना था, इन 4 ऑपरेशंस को. सो लेट्स रिवाइज. एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे किया जाता है?
बहुत आसान था। एडिशन सबसे आसान होता है, इसलिए मैं सबसे पहले एडिशन का ही नाम लेती हूँ। बहुत ईजी सा होता है, कुछ नहीं करना होता उसमें। एडिशन के रूल्स क्या थे? अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है। देन अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव, इसमें भी कुछ नहीं सोचना हमें, सेम साइन है, कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको हम ऐड कर देंगे, राइट। सिमिलरली नाउ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ऐड द numbers. Now if I have one positive and one negative integer, what will I do? याद करो क्या करते थे हम? आंसर तो हमारा वो आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर्स को। सो वेन एवर वी हैव डिफरेंट साइंस, व्हाट डू? वी सब्ट्रैक्ट दी इंटीजर्स। सब्ट्रैक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं। अब साइन कैसे डिसाइड करते थे? याद आ रहा है? याद आ रहा है? डायग्राम याद आ रहा है? बताया था मैंने। साइन कैसे डिसाइड करते हैं? ग्रेटर द नंबर दैट विल गिव अस द साइन ऑफ द रिजल्ट, है ना। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, सपोज 12 एंड -9, बड़ा कौन है? 12 या 9? 12 बड़ा है। 12 का साइन क्या है? प्लस, तो रिजल्ट का साइन क्या आएगा? +3, है ना। 12 - 9 क्या होता है? 3, तो रिजल्ट का साइन क्या आएगा? +3। -3 नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली if you have one positive and one negative where negative is greater, for example suppose you have 3 plus -12, ठीक है। अब 3 और 12 का साइन अलग है, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 - 3 क्या होता है? 9 होता है। अब आंसर +9 आएगा कि -9 आएगा? ग्रेटर नंबर का साइन देख लो, 3 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 बड़ा है, 12 का साइन क्या है? माइनस, तो रिजल्ट का साइन क्या होगा? -9। याद आ गया सबको एडिशन कैसे करते थे? नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान से सुनो कि कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन को ना अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है कि सब्ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, साइन क्या होगा एंड सॉल्व कैसे करना है। कुछ मत करो, एडिशन सीख लिया, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दो, बस। एडिशन सीख लिया ना, सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं कन्वर्ट? बताया था मैंने, याद है? सब्ट्रैक्शन को जब हम एडिशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेकेंड नंबर होता है आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन साइन, सेकेंड नंबर जो होता है आफ्टर दी सब्ट्रैक्शन साइन, उस नंबर का क्या लिखते हैं हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स। याद आ रहा है कुछ आप लोगों को? सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है? कन्वर्ट सब्ट्रैक्शन इनटू एडिशन, सेकेंड नंबर का लिख दो एडिटिव इनवर्स। अब ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया, एडिशन मैंने अभी सिखाया था, वैसे ही करना है एडिशन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। सपोज यू हैव अ क्वेश्चन 12 - 9, क्या करना है? इट विल बी इक्वल टू, माई सब्ट्रैक्शन क्या बन जाएगा? एडिशन। तो 12 तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा, सब्ट्रैक्शन कन्वर्टेड टू एडिशन, सेकेंड नंबर का क्या होगा? एडिटिव इनवर्स। नाउ व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9? व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9? इट इज नथिंग बट -9, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 इज -9। अब एडिशन में कन्वर्ट हो गया, एडिशन कर लो। जब भी दोनों का साइन डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो 12 - 9 इज व्हाट? 3, एंड साइन क्या लगेगा? जो बड़े नंबर का साइन है, बड़े नंबर का साइन क्या है? पॉजिटिव, सो द आंसर विल बी +3, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम पहले एडिशन को सब्ट्रैक्शन को एडिशन किया, फिर एडिशन को फिर सब्ट्रैक्शन किया, ये हम कर ही क्यों रहे हैं? वैसे तो फालतू कॉन्सेप्ट है, बेकार का ही करते हैं, पर करते इसलिए हैं कि जब हम इसको प्रैक्टिस में ले आते हैं ना, फिर एक टाइम आएगा जब आपको ये बार बार सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत फील नहीं होगी। तब आप डायरेक्टली अपने ही दिमाग से खुद से सॉल्व करने लगोगे। कैसे सॉल्व करने लगोगे बताती हूँ। सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर है, आपने देखा कि दिया है 12 - 9, 12 - 9 क्या होता है? 3 होता है ना भाई, तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि 12
माइनस -9 था, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इंटीजर, क्या करोगे? तुम्हें पता है कि जब मैं इसको एडिशन में कन्वर्ट करूंगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, मतलब सब कुछ प्लस हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें क्या समझ में आता है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 12 + 9, तो 12 + 9 इसका आंसर होगा। सिमिलरली इफ आई हैव अ नेगेटिव इंटीजर माइनस अ पॉजिटिव इंटीजर, तुम्हें पता है कि एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान से देखो ये होता क्या है, -12 -9 साइन सेम है तब क्या होता है? एडिशन होता है, राइट? अभी मैंने बताया था यहाँ पे साइन सेम है तब क्या होता है? एडिशन होता है। तो हम ऐड करेंगे -12 और -9 को ऐड करेंगे हम, एंड वी विल गेट व्हाट? 21 -21। सिमिलरली दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -12 -9, सब्ट्रैक्शन का साइन अलग होता है और नेगेटिव साइन अलग होता है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? अब इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? हमें पता है माइनस ऑफ माइनस क्या होता है? प्लस। सो व्हाट विल आई राइट? -12 + 9, साइन अलग है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर आएगा 3, लेकिन +3 या -3? 12 का साइन देखें क्योंकि 12 ग्रेटर है, 12 का साइन क्या है? माइनस, सो द आंसर विल बी माइनस। अब इतने सब हॉच पॉच को अवॉइड करो, सिंपली ये याद रखो, क्योंकि अभी आप लोग पहली बार करना सीख रहे हो, तो अभी एडवांस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बेसिक याद रखो। बेसिक में क्या करना है, जो सेकंड नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स, जो सब्ट्रैक्शन है उसका एडिशन बना देना है, बस यही करना है। आगे समझ में सबको? आगे समझ में? चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई तो आसान है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, कब ऐड करूँ कब सब्ट्रैक्ट करूँ, प्लस है कि माइनस है कि क्या है, आंसर का साइन क्या आएगा, वो सब मत सोचो। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू and put it in the result. What is our second step? Second step is sign. साइन का ध्यान दो, ठीक है? सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 2 × 3 6, 2 × -3 6, लेकिन -6 क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। मतलब क्या? मतलब कि अगर सेम साइन है दोनों का तो आंसर आएगा पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है दोनों का तो आंसर आएगा नेगेटिव। बस ये दो लाइन याद रखनी है, अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट साइन है तो नेगेटिव आएगा। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है तो गो बैक टू द वीडियो नंबर 5 ऑफ इंटीजर्स, वहाँ पे मैंने सिखाया था कि मल्टीप्लिकेशन क्यों पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है और क्यों होती है, सिखाया था मैंने, ठीक है? तो जो बच्चों ने नहीं देखा है जाके देख लेना। ओके चलो नेक्स्ट अब देखते हैं डिवीजन रूल्स की इंटीजर्स का डिवीजन कैसे किया जाता है। इंटीजर्स का डिवीजन क्वाइट सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन से, क्वाइट क्या, बिल्कुल ही सिमिलर है मल्टीप्लिकेशन के। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइड। फर्स्ट स्टेप रहेगा डिवाइड द न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकेंड स्टेप रहेगा कि साइन पे ध्यान दे दो, बस इतना ही करना है, डिवाइड कर लो। सपोज आई हैव टू नंबर्स 6 डिवाइडेड बाय -2, 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है 3। अब -3 या +3 चेक कर लो, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो क्या होता है नेगेटिव, दैट मीन्स व्हाट -3, ठीक है? तो बिल्कुल सेम है मल्टीप्लिकेशन के, सेम साइन है दोनों नंबर्स का तो आंसर आएगा पॉजिटिव, डिफरेंट साइन है दोनों नंबर का तो आंसर आएगा नेगेटिव, बस। सो दीज आर दी बेसिक 4 ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, ठीक है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा होगा यार मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ज़्यादा आसान है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, है ना? वरना पहले हमें लगता था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा आसान होता है, बट इंटीजर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखो आराम से, दोबारा देखो अगर नहीं समझ में आता, बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड फॉर यू गाइज, आप कितनी बार भी देख सकते हो। एंड कोई भी डाउट हो, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट
समझ में नहीं आया इंटीजर्स चैप्टर का, तो आज के आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबके रिप्लाई ज़रूर करूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। ओके बच्चा लोग, चलो देन if you guys are having fun, then quickly give a thumbs up on the video, quickly hit the like button and subscribe to the channel Vedantu Number Ninjas so that my ninjas never ever miss any sessions, because कल से क्या होने वाला है, कल से होने वाला है न्यू चैप्टर स्टार्ट। ओके बच्चा लोग, सो क्विकली hit the like button and hit the bell button also so that आपको अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सना मैम आप लोगों से मिलने कब आने वाली है। ओके चलो, सो वाइल यू गाइज आर हिटिंग द लाइक बटन, मैं क्विकली आप लोगों को जो नए बच्चे हैं उन्हें बता दूं कि वेदांतु इज हैविंग अ प्रो सब्सक्रिप्शन पैक फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अभी प्रो सब्सक्रिप्शन पैक क्या है, वेदांतु ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को कंफ्यूज क्यों करूं कि आप क्रैश कोर्स परचेज करो या चैप्टर वाइज परचेज करो या लाइव कोर्स परचेज करो। वेदांतु ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे देता हूँ, सब कुछ एक बार में सब कुछ दे देता हूँ। बच्चा डिसाइड करेगा उसे कितने महीने पढ़ने हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 1 साल 2 साल 3 साल या पूरा एंटायर सेशन क्या पढ़ना है वो डिसाइड करना है आप लोगों को। अब इसमें क्या होगा, इस प्रो सब्सक्रिप्शन पैक में क्या होगा, यू विल हैव अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स, all the best teachers of Vedantu, plus जो चीज़ आपको बाकी जगह नहीं मिलती यहाँ और क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज, नोट्स, असाइनमेंट्स, देन ऑल द स्टडी मटेरियल्स, सो मेनी थिंग्स, प्लस एक बहुत बढ़िया फ़ायदा विच आई डोंट थिंक दैट एनीवन एल्स इज प्रोवाइडिंग, यू विल गेट चैप्टर वाइज क्लासेस ऑल्सो। मतलब आपका मन है कि मुझे सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, मुझे पूरा सेशन नहीं पढ़ना या मुझे पूरे साल भर नहीं पढ़ना, या मुझे 2 महीने में एग्ज़ाम के पहले अगर मुझे लग रहा है कि ज्योमेट्री टफ़ है या अलजेब्रा टफ़ है तो मैं बस वही चैप्टर को पढ़ना चाहता हूँ, है ना, बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहता हूँ या पढ़ना चाहती हूँ, तो क्या करोगे आप लोग, यू कैन क्विकली सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे आप लोग को माइक्रो कोर्सेज मिलेंगे, क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, जहाँ पे वॉट एवर यू वॉन्ट इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट सब कुछ दिया जाएगा आपको विथ ओनली जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन। ओके, अब नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि इतना सब कुछ मिल रहा है और कैसे मिल रहा है और कितनी कॉस्ट पे मिल रहा है। तो आपको करना ही है, वेदांतु की साइट पे जाना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, किस साल आपको एग्जाम देना है वो सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन बाय द सब्सक्रिप्शन। आपको ऐसा कुछ पेज मिलेगा जहाँ पे यू कैन सेलेक्ट यू वांट टू बाय इट फॉर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ एंड सो ऑन। जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देगा वो, इट विल शो यू दैट इट इज 4000 समथिंग अमाउंट ऑफ इट, बट हियर कम्स द ट्विस्ट, if you apply the promo code of me, that is SKPRO. What is the promo code? The promo code is SK Sana Khan, SKPRO. Then you will instantly get a discount at that point and you can buy it at 2699 only. Okay बच्चा लोग, so that's all. This was the information I wanted to give you guys quickly. अब वापस इंटीजर्स पे आते हैं, थोड़ी सांस ले लो पहले। ओके चलो, सांस लेने का भी मौका नहीं देती ना मैं तुम लोग को, आई नो बट क्या करें, इतनी सारी पढ़ाई करनी है। अभी तो शुरुआत की है हमने पढ़ाई करने की, अभी तो पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, जल्दी जल्दी भागना तो पड़ेगा। पता चला स्कूल वाले एग्जाम स्टार्ट कर दिए तो मेरे बच्चे लोग क्या करेंगे फिर, है ना, एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट करना है ना। तो चलो लेट्स गो बैक टू इंटीजर्स चैप्टर। अब इंटीजर्स में हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। किसको किसको याद है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद है, जल्दी कमेंट करो और बताओ। हु ऑल रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, बताओ बताओ, व्हाट ऑल यू गाइज रिमेंबर। चलो अब मैं बताती हूँ। द प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी थी वो थी क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। प्लस हमने एक और चीज पढ़ी थी जो इनवर्स के साथ ही आती है, वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। याद है सबको सारी प्रॉपर्टीज, गुड, रिवाइज कर लें अब सबको। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर मैंने कैसे याद करने बोला था, क्लोजर मतलब क्लोज, क्लोज मतलब एक क्लोज रूम को इमेजिन कर लो, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेंगे, ना उनके पास रैशनल आ सकते, ना डेसिमल आ सकते, ना फ्रैक्शन आ सकते, कोई नहीं आ सकता है ना। तो क्लोजर क्या बोलता है,
अगर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करूं किसी दो इंटीजर्स के बीच में, तो आंसर मेरा इंटीजर ही आना चाहिए अगर मैं कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करूं। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? अभी पढ़ा था, 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इफ यू आर अप्लाइंग ऑपरेशन और एन ऑपरेशन, द रिजल्ट शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। बस इतना ही बोलता है कि इंटीजर के रूम के बाहर नहीं जाना है, इंटीजर का रूम जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था, जब हमने एग्जाम्पल्स लिए और सॉल्व किया तो हमने नोटिस किया कि जब भी हम एडिशन करते हैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में, तो आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है। दैट मीन्स व्हाट? एडिशन इज क्लोज्ड अंडर क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन की जब हमने एग्जाम्पल्स लिए, फॉर एग्जाम्पल 5 - 7 क्या आया? -2। 7 - 5 क्या आया? 2। मतलब हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया और उसे सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमें क्या पता चला? इट इज ऑल्सो एन इंटीजर ओनली। हम किसी भी इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें इंटीजर ही मिलता है ना। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमने ऑब्जर्व किया कि हमें किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर इंटीजर ही मिलता है, सो इट इज ऑल्सो अ येस। बट जब हमने डिविजन किया था देन वी ऑब्जर्व कि 5 डिवाइडेड बाई 3 या 2 डिवाइडेड बाई 3 या 1 डिवाइडेड बाय 7 इज नॉट एन इंटीजर। they are coming in decimals or fractions or a rational number, right? they are out of integers। तो जो इंटीजर्स के बाहर चला गया, कमरे के बाहर चला गया, मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो डिविजन डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। याद आ गया सबको क्लोजर क्या होती थी? अब आगे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या बताया था मैंने? कम्यूट करना मतलब स्वैप करना। अगर मैंने दो इंटीजर्स लिए हैं a और b और उनकी पोजीशन को मैं स्वैप कर दूं, b और a बना दूं, तो जो आंसर है a और ऑपरेशन b, ऑपरेशन मतलब a + b, a × b, a - b, a डिवाइडेड बाई b, तो जब मैं इनको स्वैप कर दूं तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए। क्लोजर में क्या था? आंसर इंटीजर आना चाहिए, बट यहाँ ये कंडीशन नहीं है। कम्यूटेटिव में कंडीशन क्या है? आंसर सेम आना चाहिए जब मैं स्वैप करूं तब। अब देखते हैं कि कौन कौन फॉलो करता है। एडिशन फॉलो करता है। कैसे करता है? एडिशन करके देखो, 5 + 4 इज 9, 4 + 5 इज ऑल्सो 9। अरे दोनों में सेम आंसर आ रहा है, मतलब क्या? एडिशन फॉलोज दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन करके देखो, 7 - 5 इज 2, 5 - 7 इज -2, मतलब आंसर सेम नहीं आ रहा, राइट। सो इट इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन करके देखा, 6 × 3 is 18, 3 × 6 is also 18, so it is following the commutative property। डिविजन करके देखा, 15 डिवाइडेड बाय 5 is 3, but 3 डिवाइडेड बाय 15 is not, sorry 5 डिवाइडेड बाय 15 is not 3, it is 1/3, मतलब इंटीजर ही नहीं है 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिविजन इज नॉट फॉलोइंग द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करना मतलब ग्रुप करना, एक दूसरे से एसोसिएट करना होता है एसोसिएशन प्रॉपर्टी। एसोसिएशन प्रॉपर्टी सेज if I change the grouping of integers, if I change the association of integers, I should still get the same answer। अब एसोसिएशन का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझो। जब मैंने एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, सपोज मैंने 3 इंटीजर लिए, पहला इंटीजर है मेरा -2, देन है 3 एंड देन है -4। तो जब मैंने ये किया और मैंने इनको ऐड किया, पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने 3 और -4 को ऐड किया, आंसर क्या आया? 3 एंड -4 को ऐड करने से -1 आता है। फिर मैंने -2 और -1 को ऐड किया, आंसर क्या आया? -3। अब मैंने क्या की? ग्रुपिंग बदल दी। ग्रुपिंग बदलना मतलब पहले मैंने -2 और 3 को ऐड किया, आंसर क्या आया? 1। फिर मैंने 1 और -4 को ऐड किया, आंसर क्या आया? -3। तो मैंने क्या नोटिस किया कि ग्रुपिंग बदलने से मेरा आंसर सेम आ रहा था। दैट मीन्स व्हाट? आंसर इज सेम, दैट मीन्स एडिशन
follows the associative property of integer, so it is a yes. सब्ट्रैक्शन, जब मैंने सब्ट्रैक्शन ऑब्जर्व किया तो आंसर देखा कि आंसर अलग आ रहा था, मतलब इट इज नॉट फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देखा तो आंसर सेम मिला, मतलब इट इज फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली डिवीजन करके देखा तो आंसर सेम नहीं मिला, तो इट इज नॉट फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं सारे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैंने एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक कैसे करते हैं, बाकी आप लोग खुद करके देख लेना। समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो बहुत सारे सम्स में आपको काम आई थी। आपने देखा था ना कितने सारे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चंस किए हमने, एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए। स्पेशली एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफ़ी काम आती है हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ईजी बनाने के लिए, राइट? तो चलो देखते हैं नाउ व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सपोज आई हैव अ नंबर, आई हैव एन एक्सप्रेशन a into b plus c. So distributive property says that this multiplication sign gets distributed over addition. Distributed मतलब a into b plus c को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a into b plus a into c. ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी, डोंट वरी। सिमिलरली मैंने ऑब्जर्व किया कि a into b minus c को मैं कैसे लिख सकती हूँ? a into b minus a into c. अब एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो कि आई हैव 3 इंटीजर्स -3, 7 and 8. आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस -3 to 7 and 8. तो मतलब मैं एक तरीका होता है सॉल्व करने का, 7 + 8 किया, 7 + 8 किया आया 15, 15 को -3 से मल्टीप्लाई किया आया आंसर -45. दूसरा तरीका क्या है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीप्लिकेशन को ओवर एडिशन। सो -3 × 7 प्लस -3 × 8 कैसे करते हैं? जो बाहर वाला नंबर और बाहर वाला ऑपरेशन है उसको अंदर वाले से अप्लाई कर दो, और जो यहाँ पे है साइन उसको बीच में लिख दो, बस इतना ही करना है, ठीक है? अब मैंने जब आंसर निकाला तो क्या आया? 7 × 3 21, 8 × 3 24, -21 and -24 added together gives -45. मतलब LHS is equal to RHS. That means what? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी is holding true for addition and subtraction. आ गया समझ में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ओके चलो, नाउ there's a question that can you prove the following distributive properties with any 3 integers? क्या आप किसी 3 इंटीजर्स का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो? इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे लेट a is equals to 2, b equals to 3 and c equals to 4. ठीक है, सबसे पहले हमने सपोज कर लिया क्योंकि उसने क्या बोला था? 3 इंटीजर लेके सॉल्व करो। फिर अब हम प्रूव करने का क्या तरीका होता है? आप लिखोगे यहाँ पे टू प्रूव ये दिस लाइन, टू प्रूव दिस, लेट्स राइट द प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है? LHS शुड बी इक्वल टू RHS। वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज ए? 2 × 3 - 4 इज इक्वल्स टू 2 × 3 - 2 × 4। सो नाउ 2 × 3 - 4 क्या होता है? -1 इज इक्वल्स टू 6 - 8। 2 × -1 क्या होता है? -2। 6 - 8 क्या होता है? -2। इसका मतलब LHS is coming equal to RHS. So you will write here hence verified. बट इतनी गंदी हैंड राइटिंग मत लिखना तुम लोग। आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, तुम लोग अपनी सुधार लो यार, आगे जाके बहुत पछताओगे मेरी तरफ। ओके, सो राइट इन अ प्रॉपर वे, इन अ गुड हैंड राइटिंग, नॉट लाइक माई हैंड राइटिंग प्लीज। बट दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द प्रूफ वाले क्वेश्चंस। ओके बच्चा लोग, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? एडिटिव इनवर्स। याद है मैंने क्वेश्चंस करवाए थे बहुत सारे, जब आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि इनवर्स कौन है और आइडेंटिटी कौन है। याद आ गया ना आप सबको? अच्छे से उस दिन समझ लिया था ना सबने? अब चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? अ नेगेटिव नंबर या एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, उसका साइन बदल दो,
वो हो गया उसका एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब हम उनको ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? हमें आंसर मिलता है 0। सो इफ आई एम एडिंग अ नंबर विथ द ऑपोजिट ऑफ दैट नंबर, ऑपोजिट मतलब ओनली द साइन विल चेंज। अगर -5 है तो +5, 14 है तो -14, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और जब हम उन्हें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 0। सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5? 5। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 14? -14. नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1? -1, right? Now what is the additive inverse of 0? 0, right? So this is what additive inverse is. Next, what is additive identity? हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि इनवर्स कौन है और आइडेंटिटी कौन है। इनवर्स वो जो 0 देता है, आइडेंटिटी तो खुद 0 है क्योंकि वो नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पे हमें द नंबर इटसेल्फ मिले। और ये तो सबको पता है कि ऐसा नंबर सिर्फ एक ही होता है, दैट इज 0। 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो तो आंसर नंबर इटसेल्फ ही आएगा। सो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट इज नथिंग बट हमारा प्यारा 0। ओके, नाउ नेक्स्ट, What is the difference between additive identity and additive inverse? अभी मैंने बताया additive inverse क्या है? वो नंबर जो ऐड होने पे हमें 0 देगा। और additive identity क्या है? वो नंबर जो ऐड होने पे वही नंबर देगी। समझ में आ गया डिफरेंस? इनवर्स किसको बोलते हैं और आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? ठीक है, चलो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर हम बोले रेसिप्रोकल। अब इनवर्स का चक्कर ये होता है कि इनवर्स हम उस नंबर को मानते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से। 15 में जब मैं 1/15 मल्टीप्लाई करती हूँ, 15 या 5 ले लेती हूँ, चलो 5 × 1 / 5 इज इक्वल टू वॉट? 1 है ना, क्योंकि 5 5 कट जाता है। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, उस नंबर को हम बोलते हैं इनवर्स। ठीक है, तो 5 का इनवर्स कौन होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, क्योंकि 5 को मैं किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं मुझे 1 नहीं मिलेगा। मुझे 1 तभी मिलेगा जब मैं उसके रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं। अब ये रेसिप्रोकल कौन है और इनवर्स कौन है? कुछ नहीं, जो नंबर दिया है उसको 1 कर दो, बस वही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? 1 is the multiplicative identity because any number multiplied with 1 gives the number itself. आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? अभी मैंने बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट वो जो ऑपरेशन अप्लाई करने पे उसी नंबर को रिटर्न कर दे। एडिशन करने पे ए मिलना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करने पे भी ए मिलना चाहिए। ऐसा पॉसिबल कब होगा? एडिशन में तब पॉसिबल होगा जब 0 से ऐड करें, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में तब पॉसिबल होगा जब 1 से मल्टीप्लाई करें। तो a multiplied with 1 will always give me a. So what is the multiplicative identity element? It is nothing but 1. Okay, got it? चलो, so almost all the properties are over. और इसके बाद हमने सीखी थी multiplication by 0 and everybody remembers the zero monster जो सब कुछ खा जाता है और कुछ नहीं छोड़ता है। So किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? ठेंगा, कुछ नहीं मिलता हमें, है ना। सो वी ऑलवेज गेट 0। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर होमवर्क क्वेश्चन दूंगी, वो आप सॉल्व करना और कमेंट करके ज़रूर बताना। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को देखते ही क्या याद आता है? अगर इस क्वेश्चन को देखते ही बोर्ड मार्क्स याद नहीं आता तो बहुत मार खाओगे। बोर्ड मार्क्स का लेक्चर जाके देखो और बोर्ड मार्क्स का ज़रूर याद रखो, बिकॉज बोर्ड मार्क्स के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स में कौन आता है? डिवीजन। डिवीजन कर लो, 12 डिवाइडेड बाय -3 क्या होगा? -4, क्योंकि साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो माइनस साइन आता है, राइट। नाउ व्हाट इज दिस? प्लस
-3 into 2। नेक्स्ट डिवीजन कर लिया, अब होगा मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो मल्टीप्लिकेशन कर लो, -4 प्लस 3 into 2 is 6, बट साइन क्या है, डिफरेंट, सो आंसर विल बी -6। अब माइनस और माइनस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, सेम साइन मतलब ऐड करना है, तो -4 और -6 क्या होगा, -10। बस इतना ही करना था, बॉड मास अप्लाई करना था, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना था, कर लिया। नेक्स्ट बच्चों, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको आपको बॉड मास से सॉल्व नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करनी है, और कमेंट से मुझे ज़रूर से बताना। और कल हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। सो टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, हैव अ नाइस डे माय निंजास। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। आई होप ये क्लास आपके बहुत काम आएगी जब भी आपको रिवाइज करना होगा इन टीचर्स चैप्टर। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में अभी भी नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, आई विल ट्राई टू take it up. So till then, all my ninjas, take care, have a nice day, bye bye.